Hello, dear students. Welcome Vidam Sword Open once again. So, my dear, I hope so now you are familiar with the term chemical shift, correct? So, we were talking about chemical shift and factors affecting it. Remember, right? In the last lecture, we were talking about chemical shift, correct? Chemical shift, right? And factors affecting it, correct? Factors affecting it. Is that okay? Right? And one of the most important factors is that is anisotropic effect. Remember? So anisotropic effect को मैंने explain भी किया था on the basis of applied magnetic field as well as on the basis of substituents attached. Correct? Right? Remember? So far, we know very well two important ranges of chemical shift. Correct? First one is the, yes please, alkene. Right? Alkene range. Remember? राइट मैंने आपको बताया था 4.5 to 6.5 ppm range, correct? Straight forward indication of, yes please, alkenic range और alkenic proton, correct? तो alkene के बारे में यहाँ से straight forward information मिलेगी. And second, yes my dear, that is aromatic range. You know, aromatic range, right? That is 6.5 to 8.5 ppm. Yes please, straightforward indication of an aromatic, yes please, hydrogen, okay, proton. Is that fine? Such as the benzene, heterocycles, etc. Anyway, so my dear, after anisotropy, हालांकि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं anisotropy के, right? Okay, so मैंने आई मीन आपको बेंजीन, 18 एनुलिन इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कराए थे, राइट? रिमेंबर? सो फर्स्ट फैक्टर के बाद और बहुत सारे एग्जांपल्स है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, राइट? हम उनको असाइनमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड. बट फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग इट फाइनलाइज कर लेते हैं. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड यस प्लीज कैलकुलेशन. ओके, हाउ टू कैलकुलेट डेल वैल्यू एज वेल एज जे वैल्यू, यू नो. ओके फाइन. So now let's move ahead. After anisotropy, first factor was anisotropic effect. Anisotropic effect. Remember? Anisotropic effect. And the second one is electronegativity. Fourth, third, that is percentage character. Right? ये सब मैंने आपको बताया था. So let's finish the job. So our next factor here is that is effect of, yes please, electronegativity. Correct? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होगा? होता क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यू नो वेरी वेल, करेक्ट? दैट इज द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा सिस्टम, सच एज मैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यार, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है CH3, यस प्लीज, F. सो F इज यस प्लीज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? फोन कॉल, यू नो, सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी इसी की है विड्रॉल की. That's why this carbon now becomes electron deficient, and remember, positive charge increases. Yes, please, del value increases. Remember? Simple ekdam, right? Okay. So, yes, please, now this carbon becomes electron deficient, and as a result of this, yes, please, de-shielding occurs, correct? And del value increases. So, almost क्या होगा कि जो electronegativity है, yes, please, approximately or almost directly proportional to that is del value, correct? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इफेक्ट होगा, राइट, उतना ही ज्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा सिस्टम. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोर डेल वैल्यू. एम आई करेक्ट? सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आई मीन मेंशन किए गए हैं, प्लीज टेक अ लुक. सो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, राइट? फिर इसके बाद में आपको पता है ऑक्सीजन है, करेक्ट? फिर नाइट्रोजन भी आता है, क्लोरीन. सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्रैमिंग पर्पज के लिए लिखा है यहाँ पे? नहीं, नॉट एट ऑल. हमें तो इफेक्ट चेक करना है ना. एम आई करेक्ट? राइट? सो यस माय डियर, so electronegativity of fluorine is 4. That's why most electron deficient carbon system is this, correct? So del value, yes please, value of chemical shift
इन पीपीएम। तो मैंने आपको बताया था पीपीएम एक फैक्टर है, वो कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। दैट इज 10⁻⁶ यार, अरे मिलियन है, मिलियन। ओके, सो 10⁻⁶ एक फैक्टर है, पीपीएम कोई यूनिट नहीं है। एम आई करेक्ट? ओके फाइन। ओके, सो यस प्लीज। Most electronegative, that is fluorine. Most electron deficient carbon, this one, correct? So most de-shielded, yes please, protons, correct? तो जो वैल्यू आ रही है माय डियर वो इनकी आ रही है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ये डेल वैल्यू इसकी नहीं है, ये डेल वैल्यू इसकी है, प्लीज, राइट? सो दीज आर द डेल वैल्यूज बिलोंग्स टू द proton attached directly with carbon atom. Am I correct? Right? Is that okay? So electronegativity on moving left to right decreases as a result of this. Yes, please. Okay. Del value also decreases. Correct? So यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है? Electronegativity, yes my dear, decreases, and as a result of this del value also decreases. Good enough. So we need effect. Okay, what about the effect? Exact effect of electronegativity on the del value. Correct? So ये आ गया, ठीक है डियर। सो del value approximately डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितना ज्यादा कैपेबिलिटी होगी विड्रॉल, उतना ही ज्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा सिस्टम, राइट? और उतना ज्यादा वो डीशील्ड कर जाएगा। बहरहाल, नाउ यस प्लीज, नेक्स्ट फैक्टर। you know next factor is effect of a hydrogen bonding, correct? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है दैट इज ड्यूटीरियम एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स, मैंने आपको बताया भी था, करेक्ट? सो मैं यहाँ से एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कि हमने अल्कोहल का एग्जांपल ले लिया। थोड़ी देर बाद, हाँ। सो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया अल्कोहल का, करेक्ट? सो इफ यू टॉक अबाउट द अल्कोहल्स, सो उसमें क्या होगा, आप दो सोल्यूशन लेते हो, दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। एम आई करेक्ट? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ, यस प्लीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट? सो आपको पता भी होगा कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो इंक्रीजेज। एम आई करेक्ट? सो इफ यू टॉक अबाउट द डाइल्यूट सोल्यूशन, सो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रहेगा, राइट? मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, सपोज यार अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लो ना माय डियर, अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, सच एज, यस प्लीज, कोई जनरल अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिया, दिस वन इज द एलिफेटिक अल्कोहल, करेक्ट? सो यहाँ जो OH होगा वो फ्री होगा, फ्री मतलब वहां पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सपोज मैंने लिया है मिथेनॉल, एम आई करेक्ट? सो ये फ्री है, ओके, राइट? फ्री OH है, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम है अल्कोहल की। एम आई करेक्ट? But if we talk about concentrated solution, yes please, then hydrogen bonded, yes please, OH, correct? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, राइट? तो अगर मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल इस टाइप से ले लूँ, यही ले लो, चलो मिथेनॉल या कोई भी एक अल्कोहल मैंने यहाँ पे ले लिया है, सच एज यस प्लीज H, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है माय डियर? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, O आ जाएगा इस टाइप से, राइट? और एंड हियर इज H। सो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस प्लीज, इन दिस फैशन इन्वॉल्व होगी, राइट? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, फिर से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस प्लीज, once again another mole of, yes please my dear, alcohol in this fashion। सो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस प्लीज, स्टार्ट होगी, ठीक है? आपको पता ही क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। एम आई करेक्ट? सो व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ on del values, what about the effect of hydrogen bonding, this hydrogen bonding on del value? जल्दी से बताओ मुझे, तो क्या चाहिए, डेफिशिएंट सिस्टम चाहिए, एम आई करेक्ट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो आपको पता ही कि यहाँ से, यस प्लीज, माइनस आई होता है, तो ये माइनस आई लगाएगा अपना, तो इधर से भी माइनस आई लगेगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा डेफिशिएंट, राइट? डेफिशिएंट, यस प्लीज, प्रोटॉन्स, करेक्ट, राइट माय डियर? तो ये डेफिशिएंट हो गया, राइट? बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो गया ये, डेफिशिएंट हाइड्रोजन, एम आई करेक्ट? प्रोटॉन,
ये प्रोटोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, दैट इज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दिस बॉन्ड बिकम्स वेरी वीक। और जब भी वीक बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट। और इजीली ब्रेक हो जाएगा, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ड्यूटीरियम एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ड्यूटीरियम एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स। सो बेसिकली ये कौन से प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज एसिडिक। अब एसिडिटी आप कब से पढ़ते आ रहे हो, दैट टाइप ऑफ प्रोटोन इज एसिडिक विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एम आई करेक्ट? ठीक है ना? अरे यार यही तो पढ़ा है, yes or no? So this yes please, hydrogen now becomes electron deficient and as a result of this del value increase. So जो अल्कोहल का जो del value होता है, if we talk about the yes please del value of alcohol, so my dear अल्कोहल का जो del value होता है वो 0.5 से स्टार्ट होता है, 0.5 to 5। अरे यार इतना ज्यादा डिफरेंस भाई, ये कौन सी रेंज आ गई है? क्यों भाई बच्चे, ये कौन सी रेंज आ गई यार, 0.5 to 5? हाँ मतलब ये क्या? So if you talk about the del value of, yes, if you talk about the del value of this hydrogen I'm talking about, right my dear? So इसका जो del value होगा वो कितना होगा, that is del value equals to 0.5 to 1.0 ppm, बस इतना सा। क्यों भाई? Because this OH is free, not involved in a hydrogen bonding, because we are talking about dilute solution. So concentration बहुत कम है अल्कोहल की anyway. And if we talk about the del value of, yes, my dear, this hydrogen bonded, yes, please, hydrogen bonded hydrogen. So the del value equals to, yes, please, my dear, कितना रहेगा? 4 to 5 ppm. 4 to 5 ppm parts per million, 10 raised to the power 6. Anyway, so ये रेंज इस टाइप से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो आप अगर डेल वैल्यू आई मीन गिवन होगी तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वेरी वेरी इजीली कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल वी आर टॉकिंग अबाउट। एम आई करेक्ट? गुड इनफ? यस और नो? सो वी कैन आइडेंटिफाई द डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, करेक्ट, इफ डेल वैल्यू इज गिवन। और अगर डेल वैल्यू नहीं है तो सॉल्यूशन के बेस पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, राइट। इफ द डेल वैल्यू, यस प्लीज, कम्स अराउंड 4 पॉइंट समथिंग और 4 to 5, that is a straightforward indication of, yes please, concentrated solution of alcohol. Is that okay? तो रिजल्ट क्या आ रहा है, डिस्कशन तो ठीक है हो रहा है, रिजल्ट क्या आया, extent of hydrogen bonding increases, yes please, now this bond becomes weak, right? जितना ज्यादा वीक होगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। और ये डेफिशिएंट हो जाएगा हाइड्रोजन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दिस हाइड्रोजन नाउ बिकम्स वेरी वेरी de-shielded, and as a result of this del value increases. तो extent of hydrogen bonding is approximately directly proportional to del value. जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा डेल वैल्यू इंक्रीज होगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, ये भी रिजल्ट आया। नाउ यस, नेक्स्ट वन इज, यस प्लीज, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज मेंशन किए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज, ठीक है ना? ओके हाँ, अभी मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको दे देता हूँ, रेस्ट एश्योर्ड। एक एक स्टेटमेंट में मैं बता देता हूँ आपको कि स्टेट फॉरवर्ड कैसे पता चलेगा कि ये एल्डिहाइडिक प्रोटोन है। ये प्रॉब्लम बहुत बार आई है अभी तक, करेक्ट। जितनी वैल्यूज मैं अभी लिख रहा हूँ वो सब एसेंशियल है प्लीज, ठीक है ना, कुछ भी एस्केप नहीं होना चाहिए। हाँ, सो इफ यू टॉक अबाउट सम टिपिकल रेंजेस, करेक्ट, मैंने यहाँ पे कुछ रेंजेस सेलेक्ट किए, ठीक है, जो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई। सो ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ रेंज ले लिए माय डियर, गुड इनफ। सो लेट्स टॉक अबाउट द अल्डिहाइड। अल्डिहाइड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस अल्डिहाइडिक प्रोटोन, करेक्ट। जब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इजीली बता दूंगा कि ये जो कोन वाला सिस्टम होता है, कोन बना के दिखाऊंगा आपको, है ना। तो जो हाइड्रोजन जैसे कोन के बाहर होते हैं तो जाहिर सी बात है यार वो डिशील्डेड होते हैं, जो इनसाइड द कोन होते हैं, कोन ऑफ व्हाट, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि बेंजीन यार। अभी मैंने इस पोर्शन को बचा के रखा है ना, क्योंकि मैं जब इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से समझा दूंगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से कौन होता है ना यार, ये आप जैसे पढ़ते हो इस टाइप से, क्यों बच्चे, होता है या नहीं होता यार, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कौन होता है, अबो एंड बिलो, ये बेंजीन देंगे, इसके अबो भी रहेगा कौन और एक बिलो रहेगा कौन, करेक्ट। तो बेंजीन में क्या होता है, सारे हाइड्रोजन आउट ऑफ द कोन है, करेक्ट। तो जो कोन के बाहर होता है वो डिशिल्डेड रीजन में आता है, और जो इन साइड द कोन होता है जैसे कि एसिटाइलिन, राइट, वो शिल्डेड रीजन में आता है। एनीवे, सो वो पोर्शन भी थोड़ा सा बाकी है, गुड इनफ, मैं आऊंगा उस पर वापस, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। ओके फाइन, नाउ यस,
सो नाउ लेट्स मूव अहेड. इफ यू टॉक अबाउट द अल्डिहाइडिक प्रोटोन, सो मैं एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूं, राइट? वो क्या? वन हाइड्रोजन शार्प सिंगलेट, यस प्लीज, at 9 to 10 ppm, straightforward indication of aldehydic proton, and that's it, right? सो हम कुछ ऐसे रिलायबल स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बस एक बार अगर उसने कुछ पूछ लिया तो इट्स फाइन, वही आएगा आंसर. एनीवे, सो वन हाइड्रोजन शार्प सिंगलेट एट 9 to 10 ppm. लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि 9 to 10 ppm पे कभी कभी, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है, क्योंकि वो भी यार उसके आसपास है ना. देखो भाई 10 और 10, सो कंफ्यूजन तो रहेगा ना यार. आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो अल्डिहाइड का प्रोटोन भी हो सकता है और ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है. सो लेट मी एक्सप्लेन, वेट अ बिट. ओके, सो मेंशन कर दूं? हाँ, यस, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वन हाइड्रोजन, यस माय डियर, शार्प सिंगलेट, शार्प सिंगलेट एट, यस माय डियर, डेल इक्वल्स टू 9 to 10 ppm parts per million, right? ओके, फैक्टर है 9 to 10 ppm, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? स्ट्रेट इंडिकेशन, स्ट्रेट इंडिकेशन ऑफ, यस माय डियर, aldehydic proton, aldehydic proton. इज दैट ओके? गुड इनफ, राइट? इतना रिलायबल है यार वो, राइट? ओके फाइन. सो अब इसका क्या करेंगे फिर? क्यों भाई? क्योंकि तो आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है यार हाइड्रोजन. एम आई करेक्ट है या नहीं? अरे भाई माइनस आई के थ्रू, राइट? स्ट्रॉन्ग माइनस आई है ना भाई, राइट? तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम एक्सचेंजेबल है. ओके, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, इट्स फाइन. So now what about the del value? So if we talk about the del value of carboxylic acid or acid, right? Carboxylic acid particularly I'm talking about. So इस हाइड्रोजन की जो वैल्यू आती है वो 10 to 12 ppm आती है. सो अगर मैंने आपको ये लिख दिया कि भाई ये भी वैल्यू अराउंड, यस प्लीज, 9 to 10 ppm है, तो इट्स ओके, वो उसके आसपास है, राइट? बट यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड वन थिंग. अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, राइट? वन हाइड्रोजन, प्लीज फोकस, लुक एट इट विद एन ईगल आई. यस, वन हाइड्रोजन ब्रॉड. अब ये क्या लिख दिया मैंने? बस यही है टर्निंग पॉइंट. वन हाइड्रोजन ब्रॉड सिंगलेट, ब्रॉड सिंगलेट, यस प्लीज, एट डेल वैल्यू इक्वल्स टू, यस प्लीज, 10 to 12. तो आप इसको 9 to 10 कह दो और ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. 10 to 12 ppm, राइट? जो गेट वाले कभी कभी क्या करते हैं, डेल वैल्यू को इधर उधर करके पूछते रहते हैं आपसे, है ना? तो कंफ्यूजन हो जाता है यार कि सर ये भी था ये भी था. ओके, 10 to 12 ppm इज स्ट्रेट इंडिकेशन, राइट? स्ट्रेट इंडिकेशन. सो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हुआ बच्चे शार्प वर्सेस ब्रॉड. ओके, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था बैंड ब्रॉडनिंग. एम आई करेक्ट? सो इंडिकेशन ऑफ, यस प्लीज, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड, गुड इनफ. सो बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एक ही है यार, ये ब्रॉड आएगा, प्लीज फोकस. हाँ, ये ब्रॉड है एंड दिस वन इज शार्प. एम आई करेक्ट? बस. सो आप यहाँ पे इसको 9 to 10 लिख दो दोनों को, इट्स ओके, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना, शार्प है और ब्रॉड है. सो इफ वन हाइड्रोजन ब्रॉड सिंगलेट, right, then straightforward indication of carboxylic acid, am I correct? And one hydrogen sharp singlet, right, that is straightforward indication of aldehydic proton. Is that okay? तो जब मैं कार्बन 13 आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से, राइट? रेस्ट एश्योर्ड. क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता ही है कौन सी टेक्निक आएगी. एनएमआर बेस्ट है, प्रोटोन एनएमआर. किस बेस पे क्लेम करोगे आप? इसी बेस पे जो मैं बोल रहा हूँ. वन हाइड्रोजन शार्प सिंगलेट एट 9 to 10 ppm, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन ऑफ अल्डिहाइडिक प्रोटोन, करेक्ट? सो दैट इज द मोस्ट रिलायबल टेक्निक टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड एंड कीटोन. कार्बन 13 से पता नहीं चलता. एनीवे, इज दैट ओके? नेक्स्ट वन इज द फिनॉल. अब ये भी वही एसिडिक हाइड्रोजन है, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन. सो रेंज आएगी 4 to 7 ppm. एंड दिस वन इज द अल्कोहल. अभी मैंने लिखा था 0.5 to 5, हाँ या ना? और इस अल्कोहलिक रेंज में एक और रेंज आ जाती है, दैट इज नोन एज, माय डियर, यस प्लीज, एमाइंस. एमाइंस का भी यही रेंज आता है, दैट इज
0.525, तो एमाइंस में और अल्कोहल में ऑलमोस्ट सेम रेंज आती है. गुड इनफ? इज दैट ओके? सो लुक एट इट विद एन ईगल आई. एक बार आप गौर से देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ. हाँ, अच्छे से नजर आ रहा है ना? यस. सो यू मस्ट बी kept in mind these typical ranges, प्लीज. ओके. और इसमें कंफ्यूजन एक ही रेंज में होगा, दैट इज यस प्लीज. या फिर इसमें तो कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है ना, दोनों तो वो दे नहीं सकता. एमाइंस और अल्कोहल दोनों थोड़े ही देगा भाई, एक तो देना पड़ेगा ना उसको. यस और नो? राइट. ओके फाइन. सो वी कैन डिफरेंशिएट. यस प्लीज. अल्डिहाइडिक और एसिडिक प्रोटोन, यू नो. नाउ माय डियर, लेट्स मूव अहेड. सो नेक्स्ट वन इज, यस प्लीज, एक एमाइड भी है इसमें. एमाइड 5 to 8. अब देखो ये एल्किनिक रेंज में जाएगा. राइट माय डियर. अब चलो ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में, नो इश्यू एट ऑल. अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये इतना ज्यादा, मतलब 5 to 8 ppm, ये तो एल्किनिक रेंज में जा रहा है ना? एल्किनिक रेंज क्या थी? 4.5 to 6.5. स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन ऑफ दैट इज अनसैचुरेटेड प्रोटोन ऑफ एन एल्कीन. एम आई करेक्ट? गुड इनफ. ठीक है. सो अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है? यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू रॉन प्रीवियस नॉलेज, एमाइड्स आर हाईली कॉन्जुगेटेड. एम आई करेक्ट? अभी फैक्टर ऑफ, यस प्लीज, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लेने वाला हूं. वेट ए बिट. हाँ माय डियर, जल्दी बताओ जरा. एमाइड्स आर हाईली कॉन्जुगेटेड. अब आप बोलोगे सर हाउ डू यू नो? कुछ तो बताओ, आपको पता कैसे चला? हाँ, तो यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा? यहाँ पे चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. तो जाहिर सी बात है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू आप बताओ. सो एमाइड्स आर हाईली कॉन्जुगेटेड. यस. कौन बताएगा? दैट इज आई आर. ठीक है ना? क्योंकि बैंड ऑफ सैचुरेटेड, यस प्लीज, और ए साइक्लिक एमाइड, यू नो व्हाट, यस प्लीज, बैंड ऑफ ए साइक्लिक एमाइड ऑलवेज कम्स, यस प्लीज, बिलो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स. हाँ या ना? क्यों भाई? आई आर में बिलो 17 आएगा, ये बिलो 17 हमेशा. ठीक है ना? ए साइक्लिक एमाइड आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, नॉट साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक में रिंग स्ट्रेन भी तो लगता है ना. सो रेस्ट एश्योर्ड. तो अगर एमाइड्स हाईली कॉन्जुगेटेड है, तो हमारे पास आई मीन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि एमाइड हाईली कॉन्जुगेटेड है? एक तो आई आर हो गया, दूसरा नाइट्रोजन इज बेटर डोनर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन. राइट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कॉन्जुगेशन चल रहा था, उससे बेटर है एमाइड का. सो हाईली कॉन्जुगेटेड है, दैट्स वाई कॉन्जुगेशन बहुत फास्ट चलेगा. नाउ नाइट्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड भी बहुत ज्यादा वीक हो गया. इज दैट ओके? right? And ultimately now this hydrogen or these two hydrogens, yes please, become very electron deficient, that is de-shielded. That's why range यहाँ पे पहुंची. Is that okay? So एक मैंने कुछ values बताई हैं, right? However मैं आपको correlation chart पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से. Rest assured my dear. Okay? Now let's move ahead. Effect of percent as character. Okay? तो आप बोलते भी हो कि भाई यहाँ पे हम जैसे आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज, हम क्वाइट श्योर आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर. एम आई करेक्ट? याद है या नहीं है? हाँ ठीक है. सो अब जाहिर सी बात है, परसेंटेज कैरेक्टर के बेस पे अगर मैं कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, लेट अस सी. ठीक है ना? लेकिन बेटा यहाँ पे ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये जो आई मीन इंडक्टिव इफेक्ट है, और जो परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस बेस पर यस प्लीज कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा. यहाँ पे रिजल्ट आएगा फील्ड इफेक्ट के बेस पे. एनीवे, सो लेट मी एक्सप्लेन. सो इफ यू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर, यस माय डियर, सो दिस हाइड्रोजन इज, यस प्लीज, sp3. हाँ जी बच्चे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यार? sp3 कार्बन से अटैच है. सो परसेंटेज कैरेक्टर कितना हुआ? 25%. एम आई करेक्ट? सो वैल्यू कितनी होती है इसकी? 0.922, है ना? 0.922 इतना जाएगा. ठीक है ना? यस. ओके फाइन. एंड इफ यू टॉक अबाउट, यस माय डियर, इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रोटोन दैट इज एल्कीनिक हाइड्रोजन, सो फिर से वही कौन वाला एक्सप्लेनेशन आएगा इसका? यस प्लीज. सो परसेंटेज कैरेक्टर इसका जो हाइब्रिडेशन है कितना हो जाएगा? sp2. एम आई करेक्ट? And if you talk about the percentage character, so percentage character of this carbon, yes please, that is 33.33. Am I correct? 33.33, yes please, परसेंट. So अभी तक तो ठीक था कि हाँ सर परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डेल वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है.
because percent S character is directly proportional to electronegativity. Okay, fine. I also do agree. Okay, fine. So ये तो alkenic range है, you know. And if you talk about next, अब देखो क्या हो गया. Yes, this one is the acetylene. Am I correct here? And if we talk about the, yes please, hybridization of this carbon, so this one is sp. And if we talk about percent S character, so 50%. But the del value, yes please, 1.7 to 2.7. ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम वैसे भी दे सकते हैं, कोन के बेस पे. ठीक है, तो मैं कोन बना के दिखाऊंगा सबके, रेस्ट एश्योर्ड. राइट? क्यों भाई? अरे एसिटालीन में कोन किस टाइप से बनता है? क्यों बच्चे, याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? हाँ भाई, ऐसा ऐसा होता है ना यार. राइट? तो इस टाइप से बनता है ना भाई कोन. और मैंने आपको क्या समझाया था कि जो कोन के, यस प्लीज, इन साइड हाइड्रोजन्स होंगे, वो हमेशा किस फील्ड में लाई करेंगे? दैट इज शील्डेड. किस जोन में लाई करेंगे? शील्डेड जोन. राइट? बहुत ज्यादा शील्ड कर जाएंगे. एम आई करेक्ट? ठीक है, गुड इनफ. ओके फाइन. सो एसिटाइलिन का जो आई मीन डेल वैल्यू है 1.7 टू 2.7. तो इससे कोई मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन या फिर कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं मिला. राइट? तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे लिख सकता हूँ, यस प्लीज, नो स्पेसिफिक रिजल्ट. राइट? नो स्पेसिफिक रिजल्ट. कुछ इससे मैं स्पेसिफिक रिजल्ट पे नहीं आया. करेक्ट? तो इसको आप आई मीन परसेंटेज कैरेक्टर के बेस पे आप आंसर नहीं करोगे. ओके, नो स्पेसिफिक रिजल्ट. ठीक है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ बोल नहीं सकते इसमें. ऑल राइट, गुड इनफ. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एम आई करेक्ट? ठीक है, कितने फैक्टर्स थे? एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, गुड इनफ. एनाइसोट्रॉपी के बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज कैरेक्टर. राइट? ये इफेक्ट देखे, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एम आई करेक्ट? एंड नाउ नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं. राइट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. और मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे जैम वाले और गेट गेट वाले बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो स्टेटमेंट याद है? एनएमआर वर्क्स बेस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, रिमेंबर? ठीक है ना? तो एनएमआर मशीन क्या है? लो टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करती है, बिकॉज वी नीड टू फ्रीज द सैंपल, यू नो. राइट? एनएमआर ट्यूब में जो सैंपल लेते हो आप. ओके फाइन. सो यस प्लीज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ. ज्यादातर वो यही एग्जांपल लेता है, 3-4 क्वेश्चन अब तक उसने पूछे हैं. राइट? ठीक है ना? तो एग्जांपल यही लेता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, यस प्लीज, DMF एंड इट्स डेरिवेटिव्स. इट्स डेरिवेटिव्स. राइट? डेरिवेटिव्स, गुड इनफ. सो DMF क्या होता है? NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. एम आई करेक्ट? रिमेंबर और नॉट? NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. सो ठीक है, एक एग्जांपल से हमने शुरुआत कर ली है. फॉर्मामाइड, दैट इज, दिस वन इज द एमाइड. और अभी मैंने क्या बताया कुछ देर पहले? एमाइड्स आर हाईली कॉन्जुगेटेड. करेक्ट? एक्सप्लेनेशन क्या है? IR बैंड है बिलो 1700. अब आप बोले होंगे सर ये कैसा स्टेटमेंट है, बिलो 1700 कॉन्जुगेटेड है? बिकॉज बच्चे, न्यू बार CO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, यस प्लीज, CO. यस और नो? तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO ऑल्सो डिक्रीजेस. दैट्स इट. वो हम IR में डिस्कस करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड. राइट? एनीवे, सो मैं जल्दी से यहाँ पे बना लेता हूँ. DMF का एग्जाम्पल ले लो माय डियर. सो दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ DMF, यू नो. तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे DMF, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. करेक्ट? चलो ME लिख दूँ या फिर CH3 लिखना पड़ेगा? क्यों भाई? चलो अच्छा यार, मैं CH3 लिख देता हूँ. ठीक है, कभी आप नाराज हो जाओ कि हाइड्रोजन तो नजर ही नहीं आ रहे. बाय द वे मैंने लिख दिया है. यस, दिस वन इज द एमाइड. एंड यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू ऑन प्रीवियस नॉलेज, अब पता भी चल गया है कि एमाइड्स आर हाईली कॉन्जुगेटेड. सो यस माय डियर, एमाइड्स आर हाईली कॉन्जुगेटेड. यहाँ से कॉन्जुगेटेड सिस्टम इस टाइप से बना दिया मैंने. All right, and here is, as a result of this, yes please my dear, bond order of CO decreases. All right, and now nitrogen becomes quaternary. Am I correct? अब यहाँ से अपना वही बेसिक नॉलेज जो कि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, तो लगा दो बच्चे जल्दी से. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार? फ्री रोटेशन. यस, फ्री रोटेशन याद है? रिमेंबर?
conformation and confirmation. Conformation, free rotation around single bond. It may be carbon carbon or carbon heteroatom, it doesn't matter. All right, okay, fine. So now question arises, how many signals? क्यों भाई, अब NMR वाले एक्टिव हो गए, मैंने यहाँ पे इस टाइप से यस, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। हाँ भाई शुरू हो जाओ, करेक्ट। देखते हैं जरा यार क्या प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ बच्चे, चलो जल्दी से बताओ जरा मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी आई मीन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप उसमें देखो कि वो रिजिड है या नॉन रिजिड है, मतलब उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है। ओके फाइन, और फ्री रोटेशन कहाँ पे होता है? सिंगल बॉन्ड, करेक्ट। अब आई डोंट वांट गो इनटू डिटेल राइट नाउ, अदरवाइज एनर्जी आपको याद होगी 10 to 15 किलो जूल मोल इनवर्स टू रोटेट अ सिंगल बॉन्ड, एम आई करेक्ट? कन्फॉर्मेशन यार, गुड इनफ। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट यस प्लीज दिस वन, सो यहाँ पे तो बच्चे को सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है अभी भी, यस और नो? है या नहीं यार सिंगल बॉन्ड? सो यहाँ रोटेशन पॉसिबल है, यस और नो? रोटेशन पॉसिबल है तो सपोज कर लो बच्चे, मैंने इस मिथाइल को ए नाम दिया और इसको बी, ओके लेबल कर दिया ए एंड बी। तो जैसे आप रोटेट करोगे तो मिक्सिंग हो जाएगी ना, इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। सो ए बी और बी ए, राइट? बदल गया ना भाई, कोई फर्क ही नहीं है उसमें, क्योंकि वहां तो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। सो कैसा रहा इसका आई मीन स्ट्रक्चर, किस टाइप का रहा? दैट इज नॉन रिजिड, एम आई करेक्ट? नॉन रिजिड मतलब यहां पे कैसा रहेगा वो? फ्री रोटेशन पॉसिबल है, यस और नो? जब फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो ए काइंड ऑफ मिथाइल बी और बी काइंड ऑफ मिथाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंटर कन्वर्जन, यस प्लीज, रोटेशन पॉसिबल है, एम आई करेक्ट? ठीक है ना, इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है ना यार? गुड इनफ। तो मशीन को क्या दिखेगा जल्दी बता दो प्लीज। मशीन को दिखेंगे 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे, दैट इज केमिकली एक्विवेलेंट, एम आई करेक्ट? yes or no? But if you talk about this kind of structure, so now yes please, carbon nitrogen double bond, so here in this case is partial double bond character। एक ही बार एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है माय डियर, partial double bond character। so due to this partial double bond character, yes please, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो अब आपको पता है कि अगर मैं रोटेट करूंगा तो हाँ भी कर सकते हैं रोटेशन, बट एनर्जी की जरूरत कितनी पड़ेगी? बोलो यार। अरे एल्कीन, सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं या नहीं होते हैं, राइट? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसका फीचर है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का फीचर है, एम आई करेक्ट? है ना? तो यहां भी क्या हुआ? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ ड्यू टू द डबल बॉन्ड। इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी, सो 80 to 100 किलो जूल मोल इनवर्स रिक्वायर है, हाई एनर्जी की जरूरत है ना यार, करेक्ट? तो रोटेशन तो हो जाएगा लेकिन एनर्जी हाई चाहिए। सो यस प्लीज, फ्री रोटेशन तो नहीं है। कौन सा रोटेशन है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। व्हाट डज इट मीन? कि जो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी है उसमें रोटेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब मुझे और हाई एनर्जी चाहिए, राइट? जो कि मुझे नहीं लेनी है। सो कैसा हो जाएगा ये? दैट इज नॉन, जल्दी से बता दो प्लीज, नॉन रिजिड, करेक्ट? दैट इज फ्री रोटेशन पॉसिबल है यहां पर? बच्चे, फ्री रोटेशन पॉसिबल है? जल्दी से बताओ। नो नो, देर इज नो फ्री रोटेशन पॉसिबल, राइट? बिकॉज दिस वन इज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एग्जाम्पल किसका है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का है। गुड इनफ। एनर्जी कितनी चाहिए? मैं बार बार बोल रहा हूँ 80 to 100 किलो जूल मोल इनवर्स, करेक्ट? ठीक है ना डियर? ओके, गुड इनफ। सो ये बात तो पता चली है। सो दिस वन इज ए। अभी भूले गए हम, याद है या नहीं? क्या नाम दिया था इसको बच्चे? इसको नाम दिया था ए और इसको बी, एम आई करेक्ट डियर? हाँ बस फिर, तो अब तो फिर यहाँ जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया तो भाई अपना सिस ट्रांस और इजेड वाले आ गए कि नहीं नहीं हम भी तो हैं। क्यों भाई? बोलो जल्दी से। ए टाइप ऑफ, यस प्लीज, जो ए कार्बन है, ए मिथाइल है, उसका रिलेशन यस प्लीज एच से कैसा है? 180 फार अपार्ट, यस और नो? जस्ट लाइक दैट ट्रांस, हालांकि यस प्लीज। और इसका कैसा रहेगा? यस प्लीज 180 फार अपार्ट नहीं है। तो दोनों मिथाइल कैसे हुए? यस प्लीज, वो एक जगह फिक्स है, रिजिड सिस्टम बना है। कैसा बना है? रिजिड। What does it mean? There is no free rotation possible, correct? Or even we can say there is restricted rotation possible, correct? और restricted rotation में मुझे एनर्जी चाहिए, वो नहीं दोगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, that's it। सो ए और बी में फिलहाल इंटर कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि रोटेशन है ही नहीं फ्री, एम आई करेक्ट? तो सिस्टम बना रिजिड।
सो ए और बी दोनों टाइप के जो मिथाइल हैं, यस प्लीज, केमिकली नॉन एक्विवेलेंट बन गए। एम आई करेक्ट? यस और नो? केमिकली नॉन एक्विवेलेंट बने या नहीं बने यार? सो मशीन को कैसा दिखेगा? ए टाइप ऑफ प्रोटोन का सिग्नल अलग से आएगा और बी टाइप ऑफ प्रोटोन का सिग्नल अलग से आएगा। इज दैट ओके सो फार? जो हम डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना अब तक क्या चल रही है? एम आई करेक्ट? ओके फाइन। सो यस प्लीज, इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे, नंबर ऑफ सिग्नल्स बता दो यार अब। नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ व्हाट? सिंगल नहीं यार, सिग्नल। ओफो, अरे भाई सिंगल नहीं, सिग्नल है यार। नंबर ऑफ सिग्नल्स, और यू नो दैट इज नंबर ऑफ पीक्स, जो आप बोलना चाहो। हाँ जी बच्चे, नंबर ऑफ सिग्नल्स बताओ इसमें। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस, यस प्लीज, नंबर ऑफ सिग्नल्स और पीक्स। अब इसी को लेके इतनी बार प्रॉब्लम पूछी यार उसने। हाँ, नंबर ऑफ सिग्नल्स पीएमआर में, करेक्ट। तो वन हाइड्रोजन, यस प्लीज, फर्स्ट सिग्नल आ गया। एम आई करेक्ट? हाँ बच्चे, आया कि नहीं आया जल्दी बता दो यार प्लीज। हाँ, वन सिग्नल ऑफ दिस, यस। तो वो ज्यादातर प्रॉब्लम कैसी पूछता है? टू मिथाइल को लेके प्रॉब्लम पूछता है वो, क्योंकि पता ही है कि फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। क्यों भाई? अरे डियर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। एम आई करेक्ट? क्यों भाई? ठीक है, एम आई करेक्ट? सो यस प्लीज, नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो ये तो मिथाइल कैसे थे? केमिकली इक्विवेलेंट, क्योंकि फ्री रोटेशन था। बस आगे, अब समझ, आगे बढ़ो जल्दी। सो कितने सिग्नल्स आए माय डियर? टू सिग्नल्स आए। एम आई करेक्ट? फिर से क्वेश्चन आएगा, भाई दो सिग्नल है तो किसके? वन हाइड्रोजन सिंगलेट एंड सिक्स हाइड्रोजन माय डियर सिंगलेट। इज दैट ओके? तो वो प्रॉब्लम पूछता है आपसे इन दो मिथाइल को लेके, कई बार पूछ लिया यार गेट में भी। इज दैट ओके? गुड इनफ। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं? टू। वन हाइड्रोजन सिंगलेट एंड सिक्स हाइड्रोजन सिंगलेट। इज दैट फाइन? इफ यू टॉक अबाउट दिस, यस प्लीज, कितने सिग्नल्स आएंगे? ए, बी एंड दिस वन इज सी। कितने सिग्नल्स आए? हाउ मेनी सिग्नल्स? यस माय डियर, थ्री। सो थ्री सिग्नल्स आर देयर। एम आई करेक्ट? जल्दी से बता दो प्लीज। अब थ्री सिग्नल्स कौन कौन से होंगे? वन हाइड्रोजन, यस प्लीज, सिंगलेट। थ्री हाइड्रोजन कौन से वाले यार? ए टाइप के। क्यों? ए टाइप सिंगलेट। एम आई करेक्ट? अब आप बोल रहे होंगे सर ये कैसे पता चलता है सिंगलेट सिंगलेट? अरे भाई कपलिंग होती है ना, अभी बताया जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, वेट अ बिट बस। थ्री हाइड्रोजन्स, बी काइंड ऑफ हाइड्रोजन्स, वंस अगेन सिंगलेट। सो हाउ मेनी सिग्नल्स? थ्री। अब ये बात तो श्योर है यार कि इसका टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर? हाँ, अभी तक तो ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है, राइट? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये तो सब हमें पता ही था ना। ओके, नाउ, सो एनएमआर बेस्ट वर्क कहाँ करिए यहाँ पे? क्यों भाई, नंबर ऑफ सिग्नल ज्यादा आ रहे कि नहीं? सो हर एक काइंड के प्रोटोन, हर एक टाइप के प्रोटोन को उसने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? तो अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा और स्ट्रक्चर सेकंड किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट? तो आपको पता ही है, किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। हाँ, दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एट, हाँ जी बच्चे, कौन से पे? लो या हाई? बोलो, अरे कौन से टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा ये? हम्म हाँ जी, इधर भी लिख देता हूं मैं, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एट, हाँ जी डियर, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जिस्ट एट, यस, ये जाहिर सी बात है किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा? लो टेम्परेचर पे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या करता है एनएमआर? वर्क्स बेस्ट, रिमेंबर? हाँ, राइट। तो स्ट्रक्चर नंबर टू, दैट इज हैविंग कंसिस्टिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यस प्लीज, एग्जिस्ट एट वेरी लो temperature, yes indeed. And if we talk about the first one, that is free rotation, that is exist at high temperature. अब ये हो गया फिक्स। अब आप जितनी प्रॉब्लम पूछना चाहो पूछ लो, रहेगा यही। एम आई करेक्ट? इज दैट ओके? हाँ, गुड इनफ। सो माय डियर, बात समझ में आ गई है? हम्म यस और नो? सो चलो मैं एनर्जी लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि नोट मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, रेस्ट एश्योर्ड। हाँ जी, अरे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल बैरियर। अरे भाई आगे अपनी टर्मिनोलॉजी लेके यार,
अब ऐसे नाम ले रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। रोटेशनल बैरियर, हाँ बच्चे, रोटेशनल बैरियर यार। चलो मैंने लिख दिया। हाँ भाई, रोटेशनल, यस माय डियर, बैरियर, that is energy required to rotate a single bond. एनर्जी बैरियर कितना था माय डियर? 10 to 15, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे, किलो जूल मोल इनवर्स। क्यों भाई, ऐसे लिख दूं यार छोटा सा करके, 10 to 15 किलो जूल मोल इनवर्स। हाँ जी, इधर रोटेशनल बैरियर कितना आ जाएगा? दैट इज 80 to 100 किलो जूल मोल इनवर्स। एम आई करेक्ट? किलो जूल पर मोल। इज दैट फाइन? सो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये फ्री रोटेशन है, मैंने रोटेशनल बैरियर तक बता दिया। ठीक है, वो ऐसे ही पूछ सकता है ना भाई कि रोटेशनल बैरियर, ठीक, हाई कहाँ पे होगा, फर्स्ट में या सेकंड में होगा? करेक्ट, इस टाइप से। इज दैट ओके सो फार? गुड इनफ। सो बस फिर यही प्रॉब्लम पूछता है वो तो। अब वो टेम्परेचर कितने देगा? दो या तीन? तीन देगा। फर्स्ट वन, जैसे उसने टेम्परेचर दे दिया, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, हालांकि मैं असाइनमेंट में बच्चे सारी प्रॉब्लम मेंशन है, मैं असाइनमेंट चलाऊंगा, रेस्ट एश्योर्ड। सो सपोज करो, चलो नेक्स्ट पेज पे आता है। हाँ, सपोज करो बच्चे, मैंने यहाँ से तीन टेम्परेचर ले लिया है ना, ये ले लिया मैंने T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट माय डियर। चलो भाई यहीं से ले लिया है T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T3, यस प्लीज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन टेम्परेचर ले लिया है नहीं? लोवेस्ट एंड हाईएस्ट यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, करेक्ट? क्यों भाई, स्टेटमेंट वही रहेगा, एनएमआर वर्क्स बेस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट्स इट। ठीक है ना? अब वो कितना लो ले रहा है वो उसकी अपनी हेडेक है, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट? नो नीड टू टेक एनी बिट ऑफ हेडेक, वो कितनी ले रहा है। लोवेस्ट इज 25 एंड हाईएस्ट इज 150, एम आई करेक्ट? तो मिडिल में क्या होगा? ब्रॉडनिंग। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यस प्लीज, इफ यू टॉक अबाउट द, यस प्लीज, टेम्परेचर, राइट, एट विच टेम्परेचर एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट और सेकंड, करेक्ट, एट विच टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लो टेम्परेचर। तो लो मतलब क्या हो जाएगा? ये 25 पे रहेगा, हाँ या ना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा ना यार, ठीक है, लोवेस्ट टेम्परेचर पे रहेगा। और ये किस पे रहेगा? हाईएस्ट पे, करेक्ट? और जो मिडिल टेम्परेचर होगा वहां आएगा ब्रॉड सिग्नल। कैसा आएगा? ब्रॉड। ओके, क्योंकि ना तो वो हाई है ना तो वो लो है, ठीक? तो चाहे हाईएस्ट टेम्परेचर हो, शार्प सिग्नल आएगा, शार्प। लोवेस्ट होगा तो भी शार्प सिग्नल आएगा, राइट? और अगर मिडिल में कोई टेम्परेचर है तो वहां पे उसको रहेगा कंफ्यूजन मशीन, तो क्या होगा? ब्रॉड दे देगा, करेक्ट? बस ये तीन टेम्परेचर देगा, प्रॉब्लम पूछेगा आपसे। ठीक है, सब असाइनमेंट में मेंशन है, रेस्ट एश्योर्ड मैं रन करूंगा नेक्स्ट। हाँ बच्चे, इज दैट फाइन? गुड इनफ? तो यहां भी कैसा आएगा? यस प्लीज, शार्प आएगा, शार्प। और यहां भी कैसा आएगा? शार्प आएगा। और यहां कैसा आएगा? ब्रॉड आएगा, ब्रॉड। ठीक है ना, ब्रॉड सिग्नल आएगा। इज दैट ओके सो फार? राइट? सो नाउ लेट्स फिनिश द जॉब। डेल जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो जो आपने पढ़ा है लिख डालो जल्दी से, ठीक है ना? क्योंकि हमें समरी भी तो देनी है ना भाई। जो डिस्कशन हुआ है अभी तक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल वैल्यू, सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल वैल्यू के, और कौन से ऐसे जो इनवर्सली हैं, करेक्ट? तो लिखना शुरू कर दो यार। हाँ बोलो। यस, डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हालांकि सबको पता ही है। यस और नो माय डियर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ माइनस आई, हाँ या ना? माइनस आई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जाहिर सी बात है उतना ही ज्यादा डेफिशिएंट बनेगा सिस्टम, और उतना ज्यादा ओडी शील्ड कर जाएगा। गुड इनफ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई। हाँ जी बच्चे, क्या माइनस एम माइनस आर भी होता है? यस इंडीड, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, yes or no? Yes or no? Next one is the electronegativity, am I correct? Or you know very well that is partial negative charge, inductive effect में partial negative, no? Nope. Positive, right? Partial positive charge, right my dear? Good enough, ये सब आ गया। और even that is positive charge, बस ऐसे लिख देंगे हम। हालांकि कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, तो सब हमने डिस्कस किया अभी, वही तो समराइज किया। Correct, and here is just reverse. Okay, let's finish the job. Electron donating group, am I correct my dear?
गुड इनफ, गुड इनफ. यस, प्लस आई. प्लस आई इफेक्ट. यस प्लीज. नेक्स्ट वन इज प्लस एम. हाँ या ना? ठीक है, ये डिक्रीज करेगा ना यार, प्लस एम प्लस आर. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है ये. राइट. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. लो ये आ गया, कुछ ऐसे मैंने लिख दिया. इज दैट ओके? राइट. और वी कैन से चलो पार्शियल दैट्स नेगेटिव. ओके, एक ही बात होगी वो. गुड इनफ. सो ये अपनी रिजल्ट, ये अपना आई मीन रिजल्ट आया. हमने समरी बना दिया छोटा सा. इज दैट ओके सो फार? सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ आ गया. राइट. तो इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल, यस प्लीज, दैट इज यस प्लीज, डेरिवेटिव ऑफ डीएमएफ. तो एक कई बार उसने प्रॉब्लम इस टाइप की भी पूछी है ना, ये बना दिया उसने ऐसा. हियर इज CH3. चलो मैं CH3 लिख रहा हूँ यार. CH3 और यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसने दे दिया है कुछ ऐसा. एम आई करेक्ट? ये आ गया माय डियर. हम्म. ये ले लिया उसने डेरिवेटिव ऑफ डीएमएफ. करेक्ट, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है वो, है ना? हाँ. सो यू नो वेरी वेल दैट इज नोन एज द टर्शरी ब्यूटाइल. तो जाहिर सी बात है यहाँ रोटेशन पॉसिबल है. सो ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 मिथाइल्स, these 3 मिथाइल्स आर केमिकली equivalent. that's why 9 hydrogens, 1 सिग्नल. इज दैट ओके? सो 1 सिग्नल आएगा, 9 हाइड्रोजन. तो मैं आपको समरी चार्ट दूंगा लास्ट में. ठीक है, जब सारा डिस्कशन हो जाएगा तो मैं आपको 10 to 15 पॉइंट्स में पूरे एनएमआर का समरी चार्ट बना दूंगा. राइट. ठीक है ना, लेकिन वो कब बनेगा, पहले ये डिस्कशन तो पूरी हो जाए ना यार. ठीक है. ओके. सो हाउ मेनी सिग्नल्स, वही वंस अगेन. अब सिग्नल्स आएंगे तो आप ये तो बता दो ना यार कि कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो आप, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर. क्यों भाई? करेक्ट है ना? तो बस फिर वो आपको पता ही है कि कॉन्जुगेशन से पहले क्या होना है और कॉन्जुगेशन के बाद क्या होना है. सो हमेशा 2 स्ट्रक्चर बना के बैठ जाओ. राइट. लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बेस पे हम आंसर करेंगे. इज दैट ओके? गुड इनफ. यहां तक बात समझ में आ गई है? राइट. ओके. सो हम फेमिलियर हो गए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, दैट इज डेल वैल्यू, केमिकल शिफ्ट. नाउ लेट्स कैलकुलेट डेल वैल्यू एज वेल एज जे वैल्यू. ठीक है ना? सो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ओके. और यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल मैं भी करा रहा हूँ आपको. ठीक है डियर. सो जितना अब तक हमने किया है वो सारा रिवाइज कर लो आप. जो डाउट्स हैं प्लीज आप उसको एक बार मुझे सेंड भी कर सकते हो डायरेक्टली. ओके. राइट. हाँ. सो कैलकुलेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट, दैट इज डेल वैल्यू. ओके. और आपको पता है यहाँ पे कौन सा फैक्टर है यार, PPM. एंड कपलिंग कांस्टेंट, दैट इज माय डियर जे वैल्यू. और यहाँ पे जे वैल्यू को किस में डिनोट करते हो? हर्ट्ज. और मेगा हर्ट्ज क्या है? यस प्लीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन. इज दैट ओके? गुड इनफ. हाँ. सो चलो जल्दी से बताओ जरा. अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो केमिकल शिफ्ट का तो मैंने पहले एडमिन डेफिनेशन आपको दिया था. शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सैंपल with respect to the reference compound, that is TMS. Is that okay? TMS के रेस्पेक्ट में, यस प्लीज, रेफरेंस कंपाउंड जो हमने लिया था TMS के रेस्पेक्ट में, यस प्लीज, जो हम शिफ्ट करते हैं. ओके. सो मैं जल्दी से यहाँ पे रिमाइंड ऑफ डोज दे देता हूँ. हाँ, कहाँ पे दूँ? ये पे लिख देते हैं. यस. अब सपोज करो मैंने यहाँ पे, यस माय डियर, एक मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट बना दिया. ऑल राइट. अब ये पीक, हाइट, वाइट सब कुछ सिखाएंगे आपको, रेस्ट एश्योर. This one is the TMS, you know what, and this one is, that is, you know, range minus. Okay, -1, remember or not? -2, -3. Yes my dear, this one is 0 ppm del value. Is that okay? Right. मैंने एक ट्रिपलेट बना दिया. गुड इनफ. अब यहाँ पे आई मीन जे में और डेल में क्या डिफरेंस है? राइट. तो जो मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि डिफरेंस क्या है और कैसे कैलकुलेट आप इसको करते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, यस प्लीज, डिफरेंस. What we need? Difference. Suppose my dear this one is the del 1. देखो हम हमेशा ही असेंडिंग में जाएंगे. आई मीन यू नो वेरी वेल कि टीएमएस से जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट चलते हैं तो डेल वैल्यू इंक्रीज होती है. सो सबसे नियर बाई कौन होगा टीएमएस का? डेल 1, है ना? ऐसे ही करेंगे पूरी में, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में. सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो असेंडिंग ऑर्डर लेंगे यार. डेल 1, डेल 2, राइट माय डियर, डेल 3. सो डेल 3 इज मोस्ट डी-शिल्डेड पीक. इज दैट ओके? एंड डेल 1 इज मोस्ट शील्डेड पीक.
तो जो शील्डेड पीक होगी वो नियर बाई टीएमएस होगा, उसके पास होगा। एम आई करेक्ट? सो वी नीड डिफरेंस। व्हाट वी नीड? डिफरेंस। करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे कई सारे मेथड बता देता हूँ अभी, ठीक है ना? रेस्ट एश्योर्ड। हाँ, फिर दो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भी जो जेआरएफ के हैं, वो मैंने नहीं दिए, मैं अलग से दूंगा आपको प्रैक्टिस सेट। हाँ बच्चे, सो डेल वन डेल टू डेल थ्री कुछ भी उसने वैल्यू दे दी है, तो व्हाट वी नीड? डिफरेंस। सो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ जल्दी से। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट डेल वैल्यू हियर, यस, डेल वैल्यू होता क्या है यहाँ पे, राइट? हाँ बच्चे, प्लीज फोकस। डिफरेंस बिटवीन टू adjacent peaks, difference between two adjacent peaks, yes my dear, two adjacent peaks in a multiplet। अरे यार, डिफरेंस लोगे तो कम से कम डबलेट तो होना चाहिए ना भाई, एक पीक में डिफरेंस थोड़ी आएगा। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर मल्टीप्लेट। इज दैट ओके? सो डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स इन अ मल्टीप्लेट, yes my dear, in terms of in terms of yes, ppm is known as, yes please my dear, डेल वैल्यू। लो भाई, ये आपका डेल वैल्यू आ गया है ना, राइट? तो अब कोई मल्टीप्लेट था, इट मे बी डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, सेक्सटेट, वॉट एवर। करेक्ट, मल्टीप्लेट होना चाहिए। तो डिफरेंस निकालेंगे हम, ठीक है ना? डिफरेंस इन बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स, दैट इज नेबरिंग पीक्स। इज दैट ओके? एडजेसेंट पीक्स, यस माय डियर। सो व्हाट अबाउट द जे? अब जे क्या है यार फिर? अगर ये डेल है तो जे क्या है फिर? दिस वन इज द जे वैल्यू, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। हालांकि कपलिंग कांस्टेंट पे मैं अलग से काफी आई मीन ज्यादा डिस्कशन करूंगा, रेस्ट एश्योर्ड, राइट? ओके, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन। ओके फाइन। सो ये भी कैसा रहेगा जल्दी बता दो प्लीज, ये सेम ही रहेगा यार। डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी बच्चे, टू एडजेसेंट पीक्स, टू एडजेसेंट पीक्स, राइट? थियरी में बहुत कम करा रहा हूँ, आपको पता ही है, ठीक है? टू एडजेसेंट पीक्स इन अ मल्टीप्लेट, सेम ही है यार। इन अ मल्टीप्लेट, यस, इन अ मल्टीप्लेट, यस, इन टर्म्स ऑफ, अब तक तो मैंने सेम ही लिख दिया ना। इन टर्म्स ऑफ, यस बच्चे, इन टर्म्स ऑफ हर्ज इज नोन एज, यस प्लीज, जे वैल्यू। लो, इतना सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया यार। सो डेल और जे है क्या? वो तो डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ व्हाट? डिफरेंस इन बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स। इज दैट ओके? टू एडजेसेंट पीक्स, इट मे बी डेल वन डेल टू, एम आई करेक्ट? इट मे बी डेल टू डेल थ्री, इट मे बी डेल थ्री डेल फोर, वट एवर, राइट? तो ये डिफरेंस है। इज दैट फाइन? ठीक है, तो अब ये डिफरेंस निकालना है मुझे, है ना? तो अगर मैंने डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम निकाला, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁶ सबको पता है, तो वही होगा डिफरेंस, दैट इज, that kind of difference is known as chemical shift value. And if we calculate the difference in terms of hertz, so that same difference is known as, yes please, coupling constant. ठीक है? Is that okay? Now, so ठीक है, मैं अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, so please focus. ये कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, प्लीज फोकस हियर। सो वेज टू कैलकुलेट जे वैल्यू, है ना, डेल एज वेल एज जे वैल्यू। कुछ वेज है मेरे पास, तरीके हैं कुछ। सो पहला तरीका क्या है? डेल इक्वल टू हर्ट्ज बाई मेगाहर्ट्ज। हालांकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी से सॉल्व हो जाती हैं, राइट? नो नीड टू टेक वन बिट ऑफ हेडेक। इज दैट ओके माय डियर? हाँ, सो डेल इक्वल टू हर्ट्ज बाई मेगाहर्ट्ज। डेल मीन्स, डेल मीन्स दैट इज केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन पीपीएम, करेक्ट? यू नो पीपीएम, राइट? लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे मेगा हर्ट्ज को पहले हर्ट्ज में तब्दील कर लिया। सो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वी हैव टू कंसीडर 1 ppm इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हर्ट्ज। करेक्ट? अरे भाई करते हो ना, 10⁻⁶ यार, लिख तो दिया मैंने, कहाँ लिखा है? चल आगे लिखा होगा। हाँ, तो ये फर्स्ट तरीका है, दैट इज डेल इक्वल टू हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज। तो अब आपको पता ही है यार, यहाँ से अगर मैं यहाँ से हर्ट्ज की वैल्यू निकालना चाहूंगा, दैट इज नोन एज जे यार, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? डेल इंटू, यस प्लीज, मेगा हर्ट्ज। हाँ या ना? डेल वैल्यू में मेगा हर्ट्ज की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन गिवन है उसका मल्टीप्लाई कर दो,
और डेल है क्या, डिफरेंस है. इज दैट ओके? तो मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन द डिफरेंस. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, तो यार एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, दिस वन इज द डिफरेंस. अब आप डिफरेंस निकाल रहे हो यार पीक के बीच का, डिफरेंस में बी सेम. एम आई करेक्ट? राइट. डिफरेंस तो सेम भी आ सकता है ना भाई. ठीक है. हमने क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट में कोई डिफरेंस निकाला और डिफरेंस सारे सब में, आई मीन दो एडजेसेंट पीक के बीच का डिफरेंस सेम ही आ रहा है. एम आई करेक्ट? या तो ऐसा फैशन हो सकता है, ऐसा एक पैटर्न मिल सकता है बच्चे को. राइट. और दूसरा कैसा हो सकता है कि डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है. डिफरेंस कैसा हो सकता है? डिफरेंट. करेक्ट. वो डिफरेंट भी हो सकता है, दैट इज वो अल्टरनेट भी हो सकता है. अल्टरनेट फैशन में भी तो आ सकता है ना. हाँ या ना? अल्टरनेट फैशन में और भी बहुत सारे तरीके हैं. इफ यू टॉक अबाउट द पाविया, डोनाल्ड एल पाविया, तो उसमें कुछ अंडर रूट करके मेथड दिए हुए हैं. ठीक है ना, बाय द वे. तो ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल राइट नाउ, क्योंकि उसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ती यार, इसी से सारा हो जाता है. बहरहाल, हाँ, किसी को उसमें से कुछ पूछना होगा तो प्लीज लेट मी नो. ओके. सो डिफरेंट में ऑल्सो भी ऑल्टरनेट, दैट इज पहले डिफरेंस आया सेम, फिर नहीं आया, फिर आया सेम, फिर नहीं आया, फिर आया, इस टाइप से. ठीक है ना. सो नेक्स्ट मेरे पास जो मेथड है यहाँ पे वो है एवरेज इन केस ऑफ सेम डिफरेंस. कब एप्लीकेबल होगा ये जल्दी से बता दो प्लीज. इन केस ऑफ सेम डिफरेंस. अगर मैंने पीक के बीच का डिफरेंस निकाला, राइट, और वो सेम आ रहा है, सारी पीक्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, इज दैट ओके? सो वी हैव टू अप्लाई यस प्लीज एवरेज मेथड, मतलब सारी डेली वैल्यूज को यस प्लीज प्लस करके डिवाइड कर देंगे जितनी भी डेली वैल्यूज होगी. और यस प्लीज ऑल्टरनेट मेथड. सो अब ये कब अप्लाई हो सकता है, आई मीन कब कर सकते हैं? ये कोई मेथड नहीं है, थोड़े ये शॉर्ट वे है यार, जो बना दिए हमने अकॉर्डिंग टू और ऑन कन्वीनियंस. राइट. हाँ, तो जल्दी हो जाएगा इससे. यस प्लीज. सो ऑल्टरनेट फैशन में भी हम कर सकते हैं, दैट इज इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ यस प्लीज अल्टरनेट. हाँ जी, डिफरेंस. ठीक है ना. तो अगर डिफरेंस ऑल्टरनेट फैशन में रिपीट हो रहा है ना, राइट, तो अभी तक तो थोड़ा सा इधर उधर हो रखा होगा, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, राइट, तो मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इज दैट फाइन? सो ये थर्ड वे है कैलकुलेट करने का. ये फोर्थ मैंने आपके लिए लिख दिया है, जो आप जानते हो यार पहले से ही. क्यों भाई, नहीं तो आप नाराज हो जाते, सर हमारा मेथड तो लिया ही नहीं आपने. क्यों भाई, कितनी मेहनत की थी हमने ये करने में. डेल इक्वल टू न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस, हाँ या ना, ओके, अपॉन न्यू इंस्ट्रूमेंट, राइट, इंटू 10⁻⁶. तो इससे भी आप कैलकुलेट करते हो, हाँ या ना? तो इसी को तो मैंने क्या कर दिया है, डेल इक्वल टू हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज, इसी को तो किया और क्या किया, राइट. सो 10⁻⁶ हटा दिया उसमें से. ओके, हमने पहले आई मीन तब्दील कर दिया मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में. एनीवे ये हो गया. ओके फाइन. और एक और वे है इसको लिखने का, ऐसा कुछ, ऐसे भी आप कर सकते हो. इज दैट ओके? डेल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज माइनस फ्रीक्वेंसी टी ऑफ टीएमएस हर्ट्ज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस मेगाहर्ट्ज. ओके. सो ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पे, दैट्स इट, ये भी नहीं छोड़ा. एनीवे, रिमेंबर, ये सब याद होगा ना यार, ग्रेजुएशन में सब पढ़ा है ये. ओके फाइन. सो नाउ लेट्स रिजॉल्व सम प्रॉब्लम्स. ओके, तो मैं एट प्रेजेंट दो प्रॉब्लम करा रहा हूँ आपको. ठीक है ना, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट रन करेंगे. ठीक है ना. और जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड, हालांकि पहले मैं नंबर ऑफ सिग्नल्स एक बार कैलकुलेट कर लेना चाहिए, राइट, इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट. एनीवे, सो क्वेश्चन नंबर 1. हाँ बच्चे, फोकस, लुक एट इट विद एन ईगल आई. यस, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले लिख दिया ताकि वक्त ना लगे. हाँ, यस बच्चे, यस, लुक एट इट, जरा एक बार देख लेते हैं. ओके. हाँ. सो क्वेश्चन इज द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ AX3. मॉलिक्यूल है ना AX3 AMX टाइप. ड्यूरिंग योर मास्टर आपने पढ़ा होगा, या तो सिल्वर स्टीन, कौन सी बुक पढ़ी थी भाई मास्टर में, हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी की. तुम लोग तो एच स्कोर पढ़ते रहते हो यार, प्लीज हटा दो उसे अगर कंपटीशन में रहना चाहते हो तो. ठीक है ना. उससे सिर्फ MSc पास आउट हो सकते हो बच्चे. हाँ, कंपटीशन के लिए वो अच्छी बुक नहीं है. हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ अच्छी नहीं है, बिकॉज हमारे पास यार इतने हाई लेवल की बुक्स हैं. क्यों भाई, अगर आपको बुक्स ही पढ़नी है तो यार वक्त देना है बुक्स में, तो कोई अच्छे स्टैंडर्ड लेवल बुक की, वो स्टैंडर्ड लेवल की बुक पढ़ो ना. क्यों भाई, राइट, आप पाविया पढ़ो, राइट, विलियम कैंप, सिल्वर स्टीन, गुड इनफ. सो उस अगर हम MSc ड्यूरिंग योर मास्टर आपने पढ़ा हो स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के, आई मीन
बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेंशन किए गए उसमें AMX टाइप, AX टाइप, AX3 टाइप, बट मैं उनमें डिटेल में नहीं जा रहा एट प्रेजेंट. आई डोंट वांट टू गो डिटेल इनटू डिटेल राइट नाउ. करेक्ट, गुड इनफ. सो X3 टाइप है, इट्स ओके. ओके, कुछ लाइंस दिए उसने. हाँ बच्चे, यस, फोकस. कितनी लाइंस दी है? लाइंस एट डेल इक्वल टू 2.1 एंड 2.3 ppm. कितनी लाइंस आई? पीक्स आई दो. दो पीक आने का मतलब जाहिर सी बात है यार, डबलेट काइंड ऑफ. यस प्लीज स्पेक्ट्रम. हाँ या ना? ओके, इज दैट ओके? किसके लिए आया ये? एक्स टाइप. तो एक्स टाइप ऑफ प्रोटोन, यस प्लीज, अ डबलेट. गुड इनफ. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पीक्स आर देयर? यस, दिस वन इज द del 1, del 2, del 3, del 4. Am I correct? दिस वन इज del 4. रिमेंबर? और मैंने आपको बोला है कि असेंडिंग में जाना है. del 1, यस प्लीज, मोस्ट शील्डेड पीक एंड सो ऑन सो फोर्थ. डिशील्डिंग की तरफ बढ़ेंगे. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ del. सो इट मे बी ए क्वाड्रेट. हाँ या ना? या तो ये क्वाड्रेट हो सकता है, या फिर ये डबलेट ऑफ डबलेट हो सकता है. इज दैट ओके और नॉट? अरे भाई, 2 डबलेट हो सकते हैं यार. 4 पीक का मतलब या तो वो 2 डबलेट होंगे या 1 क्वाड्रेट होगा. राइट, रेस्ट एश्योर्ड, मैं स्प्लिटिंग पैटर्न में आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. यस, सो 4 पीक्स ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ए टाइप ऑफ, यस माय डियर प्रोटॉन्स. तो ए टाइप ऑफ प्रोटॉन्स में कितनी पीक्स आई? 4. राइट. एक्स टाइप में कितनी आई? 2. ओके, गुड इनफ, नो इशू. राइट, मेजर्ड फ्रॉम TMS, an instrument operating at 100 megahertz. If we want to calculate J value, so frequency of the machine must be given. करेक्ट, जैसे कि मेथड में मेंशन भी है. अगर इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी है तो आप जे वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है ना? कैलकुलेशन हम टॉकिंग अबाउट, तो जे वैल्यू जाहिर सी बात है, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए. एनीवे, केमिकल शिफ्ट ppm ऑफ ए, प्लीज रेस्पेक्टिवली यू मस्ट बी kept in mind. A and X protons and coupling constant in Hertz, yes please, respectively are. So whenever, yes please, whenever we have to calculate, yes please, del value as well as J value, so मेरे according, right, preference will be given to J value. पहले आप J value calculate कर दो, ठीक है ना? क्योंकि J value यहाँ पे एक आएगी, यहाँ जाहिर सी बात है del value दो आ रखी है. तो जैसे आप J value कैलकुलेट करोगे, राइट, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कंपटीशन में. करेक्ट. अगर स्टार्टिंग के 10 सेकंड में कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस में कमी है. करेक्ट. हाँ या ना? ठीक है बच्चे, जब आप NMR या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़ते हो तो बहुत सारा डेटा गिवन होता है. आधी हेडेक तो उसी को देख के स्टार्ट हो जाती है. सो प्लीज आपको ये सब हिंट्स पता होने चाहिए. हालांकि जब मैं इसको फाइनलाइज कर दूंगा टेक्निक को, तब आप देखोगे कि 10 to 15 पॉइंट्स बना दूंगा मैं पूरे NMR के. राइट, और वो मोर देन सफिशिएंट इनफ होंगे, रेस्ट एश्योर्ड. ऑल राइट देन, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, यस प्लीज, एक्स टाइप ऑफ प्रोटोन. तो मैं यहाँ बना दूं. सपोज मैंने एक्स टाइप ऑफ प्रोटोन बनाया है ना बच्चे, ये बना दिया मैंने कि स्पेक्ट्रम. प्लीज फोकस, लुक एट इट विद एन ईगल आई. बस, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अभी तुरंत. हाँ जी, ये मैंने बना दिया. राइट, मैंने इसका नाम दे दिया है बच्चे del 1. ऑल राइट, और इसका मैंने नाम दे दिया del 2. 2 पीक आ गई यार. फर्स्ट पीक का वैल्यू कितना था? 2.1. वो उसके पास रहेगी ना भाई TMS के. दैट इज द शील्डेड पीक. सो दिस वन इज 2.1. यस इंडीड. एंड दिस वन इज 2.2. व्हाट अबाउट द डिफरेंस? आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस. ओके, सो डिफरेंस कितना आ गया? यस प्लीज. हाँ भाई, कितना डिफरेंस आ गया इसमें? 0.1. क्यों भाई, कितना डिफरेंस आ गया? ये 2.2 है, 3 है? 3 है यार, वो 2.3 है. 0.2 आएगा फिर. 3 है बच्चे, सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग. हाँ, सो डिफरेंस कितना आया? 0.2. एम आई करेक्ट? 0.2 का डिफरेंस आया. इट्स ओके. किसके लिए आ गया ये एक्स टाइप के लिए मैंने बनाया बच्चे. किसके लिए बना दिया मैंने? एक्स टाइप के लिए. इज दैट ओके? तो एक्स टाइप में जो डिफरेंस आया 0.2 आया. इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लेट्स मूव अहेड. इफ यू टॉक अबाउट, यस प्लीज, नेक्स्ट किस टाइप का प्रोटॉन पूछ रहा था वो? यस प्लीज,
किस टाइप का? ये एक्स टाइप के लिए मैंने बना दिया है ए टाइप। अब ए टाइप में कितनी पीक्स थी? 4। अगर 4 पीक्स थी तो मैंने एक क्वार्टेट बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि यार वो क्वार्टेट है या फिर वो डबलेट ऑफ डबलेट है, या तो 2 डबलेट हो सकते हैं या 1 क्वार्टेट हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं बताऊंगा ना। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ाया नहीं था आपको, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, करेक्ट? इज दैट फाइन? हाँ, गुड इनफ। सो मैंने यहाँ पे क्वार्टेट बना दिया, राइट। अभी हम ना तो पीक इंटेंसिटी टेंशन दे रहे हैं, ना हम स्प्लिटिंग पैटर्न इस टाइप से कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अभी तो हमें बस 4 पिक्स बनानी है, राइट। ओके, yes my dear, this one is the reference TMS, this one is the value 0 ppm, yes good enough, and this one is the del 1। चलो मैं ऐसा करता हूँ यार, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस बार। हाँ बच्चे, del 1 del 2 del 3 del 4, इतना तो इजी है यार, गुड इनफ। del 1 कितना था? 4.1, एम आई करेक्ट? del 2 कितना था? 4.3। del 3 4 पॉइंट, ओके ओके मिस प्रिंटिंग हो गया, 4.5। एंड व्हाट अबाउट del 4? 4.7। यस और नो? यस और नो? यही था ना, राइट। सो व्हाट वी नीड इमीडिएटली, तुरंत डिफरेंस निकालना है, बिकॉज हमारा काम यही है। क्यों बच्चे, क्या काम है हम लोगों का? डिफरेंस कैलकुलेट करना तुरंत। यस, हरी अप। हाँ, कितना डिफरेंस आ गया? डिफरेंस del 2 माइनस del 1। अरे भाई ये हाइड्रोकार्बन, आई मीन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है बेसिकली हाइड्रोकार्बन, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो प्लीज आप यार डी शील्डेड में से शील्डेड पीक को आई मीन सब्सट्रैक्ट करोगे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, करेक्ट? यस, तो del 2 माइनस del 1, del 3 माइनस del 2, del 4 माइनस del 3, इज दैट ओके? सो कितना आया? 0.2, 0.2, 0.2, इज दैट ओके? कैसा डिफरेंस आ रहा है? थ्रोली, थ्रोली कैसा डिफरेंस आ रहा है? सेम, एम आई करेक्ट? हाँ ठीक तो है, कोई इशू है? ठीक तो है बच्चे? हम्म, यस। del 1 del 2 del 3 del 4, 0.2 0.2 0.2, करेक्ट। तो डिफरेंस कैसा आया? डिफरेंस आ गया बच्चे सेम। हाँ जी, सेम डिफरेंस आ गया। तो मैं क्या करूंगा? 4 डेल वैल्यू दिए यार उसने, क्वार्टेट दे दिया, और फिर से वो डेल वैल्यू पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस जाहिर सी बात है यार एवरेज ही तो करोगे, और क्या करोगे? हाँ जी, सो एवरेज ले लो। एवरेज ले लिया हमने। कैसा ले लोगे बच्चे? डेल इक्वल टू, हाँ जी बच्चे, del 1 प्लस del 2 प्लस del 3 प्लस del 4 डिवाइडेड बाई 4, एम आई करेक्ट? यस और नो? अरे भाई जेआरएफ की प्रॉब्लम है वो, मैंने थोड़ा ही ना दिया यार, जेआरएफ की प्रॉब्लम है वो, मैं तो प्रैक्टिस सेट देता हूँ अलग से। हम्म, गुड इनफ। कितना हो जाएगा ये? 4.1 प्लस 4.3 प्लस 4.5 प्लस 4.7। हाँ जरा जल्दी से प्लस करके बताना कितना आया डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना डियर? है ना? और ये किस टाइप के प्रोटॉन है यार? ए है ना ये? हाँ ए है ये। हाँ जी बच्चे, ये किस टाइप के हैं? ए टाइप, यस और नो? हाँ जी, ये ए टाइप है। अरे जल्दी बताओ कितना आया? कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 17.6। लो मैंने लिख दिया, और बताओ डिवाइडेड बाई 4, 4.4 आ गया, है ना? सो ए टाइप के लिए जो डेल वैल्यू है कितनी है? हाँ बच्चे, ए टाइप के लिए जो डेल वैल्यू है कितनी है? 4.4। इफ यू टॉक अबाउट, यस प्लीज, एक्स टाइप, यहाँ पे भी आ जाओ, ये रहा, है ना? अरे है या नहीं? तो इसमें भी क्या करोगे आप? एवरेज ही तो करोगे ना यार। तो एवरेज करोगे तो इसका डेल वैल्यू कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ प्लीज। 2.1 प्लस 2 पॉइंट, हाँ जी, 3 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट? तो यह आ जाएगा 2.2, यस और नो? 2.2 आ जाएगा, करेक्ट? तो 2.24 एक्स टाइप एंड 4.4, यस प्लीज, 4 ए टाइप ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन्स, करेक्ट? गुड इनफ। सो जल्दी से जरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्या पूछ रहे हैं वो? ए एंड एक्स, ए एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। तो वैल्यू क्या आएगी? 4.4 देन 2.2। यस, जल्दी से ऑप्शन पे आ जाओ। 4.4 एंड 2.2 गेम में है ये 2.2 गेम से बाहर हो गया, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? क्यों भाई,
बोला है ना मैंने। तुरंत हटाओ भी दो ऑप्शन, ना वक्त नहीं है। हाँ जी, 2.2 एंड 4.4, ये तो सारे कट गए यार, ये भी गया। 4.3 कहाँ से आ जाएगी, ये भी गया, क्या आया, ये ऑप्शन आ गया है। तो बड़ा फास्ट हो गया यार, राइट, ये ऑप्शन आ गया। मतलब अभी भी जो जे वैल्यू है वो 20 कैलकुलेट करके आएगी। एम आई करेक्ट, है ना। देख लो भाई एक बार इसको, लुक एट इट विद एन ईगल आई यार। हाँ, इज दैट ओके, इज दैट ओके, समझ आ रही बच्चे को बात, जल्दी, गुड इनफ। हाँ, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द, यस प्लीज, जे वैल्यू एज वेल, है ना। जे वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। यस, जे वैल्यू, इफ यू टॉक अबाउट जे वैल्यू, सो जे वैल्यू के लिए क्या करते हो, जल्दी से बता दो प्लीज। हाँ, अरे जे वैल्यू कैलकुलेट करो, कहाँ करोगे यार, जगह नहीं बची क्या, हाँ यहाँ तो है, ये रही। चलो बच्चे, जे वैल्यू कैलकुलेट करो। हालांकि जे को मुझे फिर से बहुत डिटेल में पढ़ाना है आपको, रेस्ट एश्योर्ड। सो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज, डेल इक्वल्स टू, यस प्लीज, हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज, एम आई करेक्ट। ओके, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, हर्ट्ज, जल्दी बताओ बच्चे। हर्ट्ज इक्वल्स टू डेल इनटू मेगा हर्ट्ज, और ये डेल क्या है, ये डेल क्या है, दैट इज द डिफरेंस प्लीज। अब डेल ये मत रख देना यार इसमें 2.2 और 4.4, है ना। अरे वो तो ए टाइप और यस प्लीज एक्स टाइप का डेल वैल्यू है ना भाई। सो डेल क्या रखना है यहाँ पे, वी नीड टू कंसिडर द डेल दैट इज डिफरेंस इन बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स इन अ मल्टीप्लेट, इज दैट ओके, एम आई करेक्ट, गुड इनफ। तो यहाँ जो डेल वैल्यू आएगी बच्चे, क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, प्लीज यू मस्ट बी कैप्टन माइंड वंस अगेन, फिर से बोल रहा हूँ। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ डियर, जल्दी बता दो प्लीज। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.2 इंटू, क्योंकि भाई डिफरेंस थ्रोली क्या आया, 0.2 आया ना यार। हाँ, व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन, लेट मी नो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन कहाँ गई, कहाँ गई, अरे 100 है यार, 100 मेगा हर्ट्ज। सो मेगा हर्ट्ज कितना है, 100। हाँ जी बच्चे, राइट। तो आ गया ना यार 20, 20 आ गया, ये रहा। हर्ट्ज की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 20 आ गई। इतना तो इजी है, यस और नो, गुड इनफ, बात समझ आ गई है, राइट। ओके, सो ऑप्शन वन इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम्म, इज दैट फाइन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके यार, एक प्रॉब्लम ये आप ले लो, इसको जरा रिजॉल्व करना और फिर मुझे आंसर बताना, नेक्स्ट पूछूंगा मैं। हाँ भाई, ये रही प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर, यस, ठीक है। दिस वन इज द प्रॉब्लम, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ, अब नजर आ रही है ना पूरी। एन ए एक्स सिस्टम, वंस अगेन, यस बच्चे, एन ए एक्स सिस्टम, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब स्पेक्ट्रम बनाने की, प्लीज। यहीं से नजर आ रहा है ना, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, डेल फोर, इस टाइप से, यस और नो। हाँ जी बच्चे, कितनी लाइंस आई है, 4 लाइंस वंस अगेन। सो इट मे बी ए क्वाड्रेट और डबलेट ऑफ डबलेट, दो डबलेट हो सकते हैं, वन क्वाड्रेट हो सकता है। मेरा अभी वो सवाल है ही नहीं कि वो डबलेट डबलेट था या फिर वो एक क्वाड्रेट था, उस पर तो मैं आऊंगा ना यार। हाउ मेनी पीक्स, जल्दी बता दो प्लीज। वन, वन पॉइंट समथिंग समथिंग, तो यहाँ से हो जाएगा डेल वन, एम आई करेक्ट, ये हो जाएगा बच्चे डेल टू, और ये हो जाएगा डेल थ्री, और ये हो जाएगा डेल फोर। अब कॉमन सेंस ही तो लगाना है यार, तो डेल फोर माइनस डेल थ्री, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा यार, ये 17.12 आएगा ना। अरे मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है यार, ऐसे ही, ये समझ नहीं आता मुझे। बहरहाल, ओके, याद करो जल्दी। हाँ बच्चे, तो कुल मिला के बात ये है कि डेल टू माइनस डेल वन, यस प्लीज। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, चेक करो। अगर सेम डिफरेंस आएगा तो एवरेज लेंगे, और अगर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे, ऑल्टरनेट आ रहा है तो ऑल्टरनेट लोगे, करेक्ट, उस बेस पे। ऑल्टरनेट मतलब डेल फोर माइनस डेल टू, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, डेल फोर माइनस डेल टू, और डेल थ्री माइनस डेल वन, एम आई करेक्ट, राइट, ये आएगा। तो अल्टरनेट मेथड का है। ओके, सो रिजॉल्व इट, देन लेट मी नो। ओके, फिर से उसने पूछ लिया कि डेल बताओ और हर्ज बताओ, इज दैट फाइन। और वंस अगेन
100 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है. इज दैट ओके? राइट माय डियर, इज दैट ओके? हाँ. सो प्लीज इसको रिवाइज करो जल्दी से, ठीक है ना. नेक्स्ट हम लोग अपने दैट इज नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे. कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है. और भी हैं तो मैं सारे कराऊंगा आपको, रेस्ट एश्योर्ड. तब तक ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करो. राइट, ठीक है, फिर मुझे बताना क्या आंसर है. गुड इनफ. सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, सी यू इन नेक्स्ट.